क्वेश्चन नंबर 361 श्री अरविंद सावंत जी। सभापति महोदया, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 बरस में पहली बार स्टार्ट क्वेश्चन लगा, वो भी पहले नंबर पे लगा। पहला नंबर पे आज बहुत खुश हूँ। उसका लाभ उठा लो। मैडम स्पीकर, 361 बोल दिया, लॉटरी लगी मेरी। यादव जी, अभी कुछ नहीं, मैडम स्पीकर बोलो, बैठो। क्वेश्चन नंबर 361। यस मिनिस्टर। आप पटल पर रखा है। मैडम स्पीकर, at the first instance, I heartily congratulate the Honorable Minister for withdrawing the decision of corporatization of the MB major ports. There was a strong resentment among the employees, and thinking of modernizing the institutional structure of the major port by appointing some committee. Earlier also some committees have been appointed. One Rani Jadhav committee was there. Of late we have heard some expert committee was appointed, and that committee's report was accepted by the ministry and was to be submitted to the cabinet for the approval. But right now I have learned that the ministry has appointed some private legal firm to decide about the amendment in the Major Port Act 1963. It's of old old act, 50-60 years have passed, and the minister is striving hard to augment the business over there, but at the same time we are not able to cope up the speed as expected. In Mumbai, Sassoon Dock was now being modernized. Bhausa Dhakka is being modernized. I welcome this and again congratulate for that also. He has already declared around 86 projects, and in that also he has declared one of the major things which I was insisting for a long time, the deepening of the draft. I do not know whether Mumbai port is there in that or not, but right now the clearance is also being delayed at the ports. The berths are late, the modern plants the mechanism is late, and therefore I have a question. There are some private ports except the major port. One is from Ennore, Kamarajara. That port is now corporatized, but I don't know how the business is going on where. Therefore I would like to ask the minister whether it is true that the ministry has floated a tender for seeking to hire a legal firm to amend MPT Act. If it is so, when it is expected to amend the act? He has answered in that also. Please. Employees will be, one second ma'am, once employees आपको सेकंड सप्लीमेंट्री okay. Thank you so much, मिलना है। मैडम, वर्तमान स्थिति में पोर्ट में प्रोफेशनल इफिशिएंसी आए, पोर्ट का जो टाइम है वो कम हो, और वर्ल्ड की तुलना में जो जागतिक दर्जे से जो बड़े पोर्ट बने हैं उनके इफ़िशियंसी के नॉर्म्स पर भारतीय पोर्ट जाए, इसलिए कानून में कुछ सुधार करने की आवश्यकता थी। उसको प्रोफेशनली, ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड और उनको अधिकार देने की आवश्यकता थी। इसके बारे में वित्त मंत्री जी ने बजट में कहा था कि हम कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ पोर्ट करेंगे, पर बाद में हमारे जो अनेक सांसद हैं, ट्रेड यूनियन के लीडर्स हैं, वो काफ़ी लोग मिलने के बाद सरकार ने प्रधानमंत्री से भी चर्चा की, फाइनेंस मिनिस्टर से चर्चा की, और उनके अनुमति से हमने निर्णय किया कि हम अब कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ पोर्ट नहीं करेंगे और एग्जिस्टिंग मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट को हम सुधार करेंगे, और उसके लिए पोर्ट ट्रस्ट का नाम अथॉरिटी होगा। और मैं, आपने बहुत सी बातें कही है, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पोर्ट जो है, शेयर ऑफ प्राइवेट पोर्ट्स जो है वो केवल 0.61% से 2015-16 में बढ़ा है, वेयर शेयर ऑफ मेजर पोर्ट, गवर्नमेंट पोर्ट, ये 4.31% से बढ़ा है। यानी हमारी पोर्ट की इफिशिएंसी प्राइवेट पोर्ट से भी बढ़ी हुई है। दिस हैज़ हैपन आफ्टर 10 years of continuously low growth as compared to private ports. Current year 16-17, 4 months cargo growth at major port is 5% से बढ़ी है। मैं इस सदन को बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि हमारी सरकार आने के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्णय हमने किए कि हमने एक फॉरेन कंसल्टेंट को हायर किया था, उसने 104 रिकमेंडेशंस किए थे, उसमें से 38 हमने इम्प्लीमेंट किए हैं, और उसका परिणाम ये हुआ कि ऑपरेटिंग मार्जिन जो है हमारी पोर्ट की वो 39.18% से बढ़ी है, और ये पिछले इसमें से 25 साल का ग्रोथ का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है।
ग्रोथ ऑफ 90.7% कंपेयर विद 2014-15। और केवल आपको बताता हूं कि पोर्ट का जो प्रॉफिट है वो पहली बार हमारे देश में 4,309 करोड़ रुपए केवल हमारा पोर्ट का प्रॉफिट मिला है, ऑल आर इन प्रॉफिट। तो हम लोग अभी प्राइवेट पोर्ट की तुलना में मोर इफिशिएंट हुए हैं। कभी कभी हमारे ऊपर एलिगेशन होता है, गुजरात में हमारा कांडला पोर्ट है, आरोप किए जाते हैं कि हम प्राइवेट पोर्ट को सपोर्ट करते हैं। तो जो प्राइवेट पोर्ट है गुजरात के, उनका डाउन हुआ और हमारी इफिशिएंसी बढ़कर हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ। तो ये इसका ये है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि आज पोर्ट सेक्टर में हमारी सरकार आने के बाद 72,787.28 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है और इससे नया एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा हुआ है। और सागरमाला जो प्रोजेक्ट है उसमें करीब 12 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है, जिसमें आप सबका सहयोग चाहिए। उसमें से 4 लाख करोड़ रुपए जो है वो पोर्ट रोड कनेक्टिविटी और पोर्ट रेल कनेक्टिविटी पर है, उससे और इफिशिएंसी बढ़ेगी। और दूसरी बात ऐसी है कि इसके साथ 27 इंडस्ट्रियल क्लस्टर बना रहे हैं, जिसके कारण करीब 8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी। और मैडम महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस सदन ने यूनानिमस जो हमारा इनलैंड वाटरवेज का जो विधेयक मंजूर किया था, उसकी अच्छी शुरुआत कल से हो रही है। कल वाराणसी से कलकत्ता के लिए 2 शिप रवाना हो रहे हैं और मारुति के साथ हमारा करार हुआ है। और कल वाराणसी से, यहाँ से गुड़गांव से मारुति की गाड़ियाँ वाराणसी तक जाएगी और वहाँ से फिर नॉर्थ ईस्ट, आसाम, बंगाल सब गाड़ियाँ पानी पर चलना शुरू हुआ। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भी पहली बार गंगा में 1400 टन का बार्ज पहली बार कल उसको हरी झंडी वहाँ से मिलेगी। और गंगा में अब वाटरवेज अभी जोरों से शुरू हुआ है और 10 लाख टन जो माल जाता था, हमारा विश्वास है कि 2 साल के अंदर गंगा में 200 लाख टन का माल वहाँ से हम चलाएंगे, जिससे गंगा के बाजू में जो 40 पोर्ट डेवलपर और मल्टी मॉडल निर्माण हो रहे हैं वो भी एक ग्रोथ सेंटर्स बनेंगे और वहाँ भी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आएगी। और हम लोग ये जो कारपोरेशन कर नहीं रहे हैं, ट्रस्ट एक्ट को सुधार कर रहे हैं और लेबर यूनियन के भी लीडर को उसमें हमने प्रतिनिधि के रूप में लिया है। बीच में केरल के लोग मेरे पास आए थे कोचिन शिप यार्ड को लेकर, और कोचिन शिप यार्ड को मैंने उनको समझाया कि हम लोग इसको प्राइवेट इक्विटी खड़ा करना चाहते, तो हमने कहा कारपोरेशन नहीं कर रहे, अगर आप नहीं चाहते तो मैं कोचिन का पोर्ट गुजरात लेके जाता हूँ, अगर आपकी चाहते। उन्होंने कहा ऐसा मत करिए, तो उन्होंने कहा नहीं मैं आपकी बात बता रहा हूँ। बाद में आपने सपोर्ट किया और उन्होंने अभी 2000 करोड़ मार्केट से खड़े किए और पहली बार देश के इतिहास में हमारे JNPT पोर्ट ने 3000 करोड़ रुपए, हम डॉलर में टर्नओवर करते हैं, तो 3000 करोड़ रुपए 2.75% से 2.25% से 3000 करोड़ रुपए बैंक से लिए और लो इंटरेस्ट कॉस्ट के कारण वायबिलिटी होगी। ऐसे 50,000 करोड़ डॉलर में लोन लेकर और बाकी PPP मोड में इसको हम लोग करेंगे और इसमें कहीं कारपोरेशन करने का प्रश्न उद्भवता है। सेकंड सभापति महोदया, स्वागत करता हूं, सहे दिल से, बहुत अच्छी बात है। मैं स्पेसिफिक अभी एक छोटे से 2 प्रश्न है मेरे। अपने रेल कॉर्पोरेशन में उस उद्घाटन समारोह में था, तो मेरी आपसे प्रार्थना है, मुंबई पोर्ट की इस सारे 86 प्रोजेक्ट में मुंबई पोर्ट के कितने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट? JNPT मैं जानता हूं उसका बिजनेस भी बड़ा है, पोर्ट भी अच्छा है, थोड़ा और भी उधर सुधार की आवश्यकता है, लेकिन मुंबई पोर्ट और ये रेल कॉर्पोरेशन में क्या हम ये सोच सकते हैं क्या, क्योंकि मुंबई में जो रेल से जो यातायात होती है उसकी बहुत मतलब बड़ी संख्या में यातायात होती है, दिन में यात्री उसमें यातायात करेंगे और रात में आप फ्रेट चलाएंगे, ऐसे कुछ सोच में आपके है क्या? और मुंबई पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए 86 में से कितने प्रोजेक्ट हैं? धन्यवाद सभापति महोदय। स्पीकर महोदय, आप जानती है कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अब मुंबई में आया है। आप जैसे मुंबई में रहते थे, मैं भी रहता हूँ। डीमेलो रोड से जाना यानी सज़ा है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये सब मुंबई के सांसद जानते हैं। अब मुंबई पोर्ट को पोर्ट करके विकसित करना एक समय ठीक था, अभी उसके कारण इतने प्रॉब्लम है कि वहाँ का जो ट्रक का ट्रैफिक अगर सायन में जाता है तो इतना मुंबई का पोल्यूशन है, एक्सीडेंट्स होते हैं। अब मुंबई पोर्ट और कलकत्ता पोर्ट, इसको पोर्ट करके बढ़ाना वहाँ नागरिकों के हितों में नहीं है, और इसलिए मैंने आपको आश्वासन दिया था, आप चिंतित हैं, कोई भी पोर्ट में लिक्विड कार्गो जो है 57% आता है, उसको अलाउ करेंगे। हम वहाँ मरीन एरिया नया बना रहे हैं, जिसमें कारण प्राइवेट इसमें मरीन में मुंबई का सौंदर्य बढ़ेगा। और एक मैंने सिंगापुर और वर्ल्ड लेवल पे एक प्लान करने की ये बुलाई है, टेंडर बुलाया है, और मैं चाहता हूँ कि जैसे दुबई का डेवलप हुआ कि वर्ल्ड के रिकॉर्ड टूटे,
वैसे मुंबई भी और पोर्ट भी बहुत अच्छा बने और उसमें किसी भी महाराष्ट्र सरकार के नियमों के अनुसार जो जो झोपड़पट्टियां है, गरीब लोग हैं, जितने प्रश्न आपने मेरे पास रखे हैं, सबका समाधान करके, जो कानून में जितना उतना सबका समाधान करके सॉल्यूशन निकालेंगे। किसी का नुकसान करते हुए नहीं करेंगे। उनके सहयोग से मुंबई पोर्ट को वर्ल्ड का एक अच्छा पोर्ट एरिया डेवलप करने का विचार है। भारतीय